चलिए, सो यही स्ट्रक्चर हम अभी डिस्कस करेंगे। ना एक्चुअली जो हमारा बोन है, एज वी नो दैट ये एक देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ बोन, सॉफ्ट बोन एंड डेंस बोन। ठीक है, तो सॉफ्ट बोन एंड डेंस बोन, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए बोन जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, ओके, एंड उसमें भी आपका क्या है, तो बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड उसमें भी मैट्रिक्स एंड कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, सो दैट इज आल्सो हैविंग मैट्रिक्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, सो okay, like other connective tissues, bone contains क्या, an abundant extracellular matrix that surrounds widely separated cells. The ECF is about 15% water, 30% collagen and 55% mineral salts. ठीक है, the most abundant mineral salt is calcium phosphate. Okay, calcium phosphate. It combines with another mineral salt, calcium hydroxide, to form crystals of hydroxyapatite. Okay, ये बहुत Yes, important concept है. Okay, hydroxyapatite. Okay, now as the crystals form, they combine with still other mineral salts like calcium carbonate, okay, and ions such as magnesium, इसको हम लोग Mg2+ बोलेंगे, फ्लोराइड F- बोलेंगे, पोटेशियम K+ बोलेंगे, सल्फेट SO4 3- बोलेंगे। ओके, SO4 3-। प्लीज माइंड इट, ये सब सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट है, तो जूम में वो सब नहीं होता है। Now, as these mineral salts are deposited in the framework formed by the collagen fibers of the ECF matrix, okay, of the ECF matrix, they crystallize and the tissue hardens. This process is called calcification. Okay, so this process is called calcification and is initiated by bone building cells called osteoblasts. ठीक है, तो ये हमारा पहला तरह का सेल है ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है जी, नाउ उसके बाद जो हमारा बोन है, it was once thought that calcification simply occurred when enough mineral salts were present to form crystals. But we now know that the process requires presence of collagen fibers. ठीक है, mineral salts first begin to crystallize in the microscopic spaces between collagen fibers. After the spaces are filled, mineral crystals accumulate and the collagen around the collagen fibers. The combination of crystallized salts and collagen fibers is responsible for the characteristics of bone. ठीक है, तो ये उसका मेन पॉइंट है। तो इसीलिए आपको याद रखना चाहिए, पहले हम लोग क्या सोचते थे कि ओनली आपका इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट। नाउ so microscopic spaces between the fiber and around the fiber, इसमें difference क्या हुआ? सेम ही तो ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे सेम हो जाएगा? चलिए, सो ऑल्दो ए बोन्स हार्डनेस डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टलाइज्ड इनऑर्गेनिक मिनरल salts, a bone's flexibility depends on
कोलाजन फाइबर्स। तो जो हार्डनेस है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट से डिपेंड करता है कि नहीं, एंड द फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन इट्स कोलाजन फाइबर्स। सो ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। Like reinforcing materials, like reinforcing metal rods in concrete, collagen fibers and other organic molecules provide tensile strength, resistance to being stretched or torn apart. Soaking a bone, ये आपका क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक बोन को सोक करेंगे तो क्या होगा, इन HCl। तो सोकिंग ए बोन, क्या नीचे नहीं जा रहा है, ना ये हमारा क्वेश्चंस जो है ये आएगा इन केस ऑफ योर नीट एग्जाम्स एंड एटसेट्रा, दैट सोकिंग अ बोन इन एसिडिक सोल्यूशन। तो एसिडिक सोल्यूशन नहीं लिख के हम चलो लिखा हुआ है लाइक विनेगर, ओके, विनेगर कॉमा HCl, ओके, dilute HCl dissolves its mineral salts, causing the bone to become rubbery and flexible. Okay, so ये आपका concept है। Now, when the need of a particular mineral arise, because ऐसा क्यों होता है, because when the need for particular mineral arises or as part of the bone formation or breakdown, bone cells called osteoclasts, okay, osteoclasts क्या secrete enzymes and acids that break down both mineral salts and collagen fibers of the ECF matrix। तो समझ रहे हो, इसलिए they are called, हम लोग उसको क्या कहते हैं, okay, the bone, so they are known as क्या, bone breaking cells। समझ रहे हो, तो इसलिए ऑस्टियोब्लास्ट क्या हो गया, बोलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड पेरोक्साइड, फिर हाइड्रोक्सी एपेटाइट, फाइन। तो ये मेन चीज है। तो बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स, एंड बोन ब्रेकिंग सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो हार्डनेस जो है डिपेंड्स अपॉन इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डिपेंड्स अपॉन कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बोन। ये हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, अभी भी हम लोग डेंस बोन पे आए नहीं हैं, तो ये हमारा जनरलाइज बोन का डिस्कशन है। नाउ इसलिए हम लोग यहाँ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पाएंगे, जनरली हम लोग 3 बोलते हैं, बट एक उसका मदर सेल भी होता है। सो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन बोन टिश्यू। कौन कौन सा, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल, ये क्या है, जो सारे सेल्स का दाता है, टोटिपोटेंट। हाँ। फिर 2 है ऑस्टियोब्लास्ट, ये बोन फॉर्मिंग सेल है। 3 जो है वो ऑस्टियोसाइट्स है, ओके। तो इसीलिए ऑस्टियोप्रोजेनिटर, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, है कि नहीं, इस तरह से हम लोग कर देते हैं।
ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड फोर्थ जो है क्या है, वो है ऑस्टियोक्लास्ट्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सो ये आपका क्या है ऑस्टियोप्रोजेनिटर, दिस इज बोन स्टेम या स्टेम सेल्स दैट मेक द बोन टिश्यू, या उसको हम लोग बोन मदर सेल कह सकते हैं, बोन मदर सेल कह लो या एंसेस्टर सेल कह लो। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या हो गया, दे आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स। ओके, सो ये आपका बोन फॉर्मिंग सेल्स है। नाउ एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय बोन फॉर्मिंग सेल्स, दे deposit calcium, okay, back into the matrix, okay, when sufficient, okay। तो इसलिए एक्चुअली देखो, one of the main function of bone is it functions as a calcium bank। तो देखो, आप लोग जानते हो कि बोन का कैल्शियम का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन, नो, कैल्शियम का बहुत काम है बॉडी में। ओके, तो इसीलिए जब भी कैल्शियम चाहिए एंड आपके बॉडी में नहीं होता है, तो बॉडी क्या करता है, वो बोन से ले लेगा। तो उसको लेने के लिए वो ऑस्टियोक्लास्ट की मदद लेता है। तो इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, so they are called bone breaking cells, they remove calcium ions from the matrix when needed by the body। ठीक है, तो इसीलिए रिमूवल ऑफ कैल्शियम को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एंड फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं ऑस्टियो क्या, ब्लास्टिक एक्टिविटी। तो ये सब हम लोग को आगे फिजियोलॉजी में यूज करना है, इसलिए याद से रहेंगे। आप लोग जैसे पकड़ा खा के बैठ जाते हो, उससे फायदा कुछ नहीं है। चलिए, सो इसलिए ऑस्टियोसाइट्स जो है वो क्या है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। सो दे आर मैच्योर, ओके, mature bone cells, okay, and they have characteristic, कैसे उनको पहचानोगे, protoplasmic processes, so they have characteristic continuous protoplasmic processes, है कि नहीं, which help them to be in क्या, association of all other osteocytes, hence the osteocytes are arranged as a layer और लैमेला। तो समझ रहे हो, तो अगर हमने ऑस्टियोसाइट्स का क्या देखा, अगर ग्रोथ हुआ तो पूरा का पूरा लेयर डलेगा, सो दैट इज कॉल्ड लैमेलर ग्रोथ। याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बोन है। ठीक है, सो ये आपका हो गया अबाउट ऑस्टियोसाइट्स। तो आई विल ट्राई टू शो यू या ड्रॉ दोज डायग्राम्स, तो आप उसको देखेंगे। चलिए, सो लेट मी शो यू, देन वी विल ड्रॉ इट ऑल्सो, बिकॉज इसका ड्रॉ करना जरूरी है। नाउ इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. So we'll make a box. Now अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, फाइन, सो ये हमारा क्या है, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल है।
फाइन, उससे आपका सारा सेल बनता है। फिर ऑस्टियोब्लास्ट है, फिर ऑस्टियोसाइट्स है, एंड अल्टीमेटली ऑस्टियोक्लास्ट्स है। So functions are very clearly shown there, so you can see it. ये देख रहे हो, तो ये सब क्या है? Continuous protoplasm. ठीक है जी? So this is the case. Now let us clear it and हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एक्चुअली जो बोन सेल है कि नहीं, गोटे नोट लिखाएंगे। So नोट लिखेंगे that bone cells start their growth in a vacant space known as lacuna. ओके, तो एक छोटा सा खाली जगह में उसका ग्रोथ शुरू होगा, एंड विथ टाइम they fill the entire lacuna. ठीक है? सो इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। दो आपका इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मेरा काम मैं करूंगा, आपका भले इंटरेस्ट हो ना हो पढ़ाई में। चलिए, सो नाउ ये आपका क्या है? सो ये एक खाली जगह है। सो दिस इज अ वैकेंट स्पेस, एंड आप जानते हैं ये बाहर सारा बोन है, तो दिस इज ओनली द पैसेज। देख रहे हो? तो अगर मैं आपको हल्का हल्का लाइन बना दूं, तो ये जो है ये सब पैसेजेस हैं। देख रहे हो? तो यहां से कोई बाहर जा सकता है, बट रेस्ट सारा क्या है? जो रेस्ट सारा कुछ आपका एक कैविटी है, बोन है, बोन, ओनली मिनरल्स। अब इसके अंदर एक छोटा सा सेल डेवलप करना शुरू करता है। फाइन, सो दिस इज ए स्मॉल सेल विच स्टार्ट्स डेवलपिंग इनसाइड द लैक्यूना। ठीक है? ये एक छोटा सा सेल है जो उसके अंदर डेवलप करना शुरू करता है। Now, what is this then? This is called the osteoblast. अब ये जो नहीं, वो प्रोजेनिटर हम लोग उतना डिस्कस नहीं करते हैं, ओके? तो इसलिए ये हमारा ऑस्टियोब्लास्ट से ही डिस्कशन शुरू होगा। प्रोजेनिटर मतलब वो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, तो उसका हम लोग वी जनरली डोंट डिस्कस दोस थिंग्स इन योर लेवल, ओके? अब तो ये जो है ये हमारा वही लैक्यूना है, ओके? ये एक लैक्यूना है। सपोज ये एक और लैक्यूना हो गया, देख रहे हो कि नहीं? सपोज ये एक और लैक्यूना हो गया, सपोज ये एक और लैक्यूना हो गया। देख रहे हो? व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसेस? सो दीज आर ऑल लैक्यूना। अब क्या होता है, जैसे ये ग्रोथ करने लगा, तो अब व्हाट हैपेंस? सो दिस इज द न्यूक्लियस, है कि नहीं? अब ये आपका बोन न्यूक्लियस है, एंड इसका जो साइटोप्लाज्म है वो चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। सो नाउ इट स्टार्ट्स स्प्रेडिंग एवरीवेयर। देख रहे हो? तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म है। फाइन, आप देखो ये इधर आया, ये इधर चला गया। देख रहे हो कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म? सो दीज टू सेल्स आर इन कनेक्शन। ये सब स्ट्रिक्टली जेजेस मटेरियल है माय डियर, ये और कहीं नहीं मिलता, तो समझ रहे हो? तो ये देखो, ये इधर आ गया। सो अगेन ये दोनों इन कम्युनिकेशन, देख रहे हो? सो आप देखो इसका मतलब क्या है, ये सारे तीनों सेल जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। समझ में आया?
ये उसका मैट्रिक्स है, अब उसका मैट्रिक्स बना लेंगे हम लोग। तो ये अभी पूरा सेल हो गया एक्चुअली, ये अब छोटा मोटा सेल नहीं है, ये पूरा एक सेल हो गया। फाइन, होल थिंग इज ए सेल। सर तो हम इन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड कह सकते हैं। नहीं, क्योंकि आपका कंटिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म है। सारे सेल्स हैं। हाँ, बट दे हैव देयर बाउंड्रीज, उसमें कनेक्शन है, और क्या क्या करेंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड तब कहते हैं जब ये अलग अलग सेल ना होकर एक सेल होता। जैसे आपका यहां देख लोगे, जो क्या उसको कहते हैं, जो क्या उसको बोलेंगे, एक सेकंड, समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, ये सारा एक ही सेल है, ऑल इज ए सिंगल सेल। जैसे हमारा जो प्लांट सेल में होता है, तो प्लास्मोडेस्माटा के थ्रू में सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, बट क्या वो Continuity. सारा एक ही सेल है क्या? वो सारा एक No, सेल sir. नहीं है। नो सर। तो लाइक दैट, तो इसलिए दे आर नॉट कॉल्ड ए सिंगल सेल। आप उसको सिम्प्लाज्म कह सकते हो, कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके, बट उसको डिफरेंट सेल्स ही बोला जाता है। तो आ गया मजा के नहीं? तो हर कोई एक Yes, sir. बनाएगा, कोई आपको कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म नहीं दिखाएगा। सो यहाँ देखो, ये खाली जगह है, इसका भी कलर कर देते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ग्रो क्या हुआ। तो ये आपका जो साइटोप्लाज्म है, देख रहे हो? तो पहले ठंडा, तो पहले ये ऐसा था, अब ये पूरा भर गया है, एंड अब हवा भी नहीं तेरे मेरे दरमियान। तो इसका मतलब अब जो बोनी सॉकेट है, अब लैक्यूना कहाँ है? अगर अभी हम लैक्यूना को ढूंढे तो किस्मत से मिलेगा। कहीं मिल रहा है हमें लैक्यूना? एक्चुअली ये देखो, ये जो छोटा सा, ये एक्चुअली होना चाहिए, ये जो मैंने शेडिंग किया वो चढ़ गया उसके ऊपर, समझ रहे हो? ये जो खाली Yes. जगह है, तो ये आपका है लैक्यूना। ओके, तो नाउ ये ट्रेस है, ट्रेसेस, अब थोड़ा सा ही मिलेगा, बट इधर क्या है, ये बड़ा सा लैक्यूना है। ओके, तो ये बड़ा सा लैक्यूना है, एंड ये क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। एंड व्हाट आर दीज आर मैच्योर ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो इसलिए ऑस्टियोसाइट्स, इसीलिए आप ऑस्टियोसाइट्स को हम लोग, तो जब हम लोग बनाएंगे ड्राइंग, तो आपको कैसे बनाना है, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको ड्राइंग बनाना है। तो सपोज ये आपने बनाया एक लैमेला, एंड इसमें आप क्या बना रहे हैं, यू आर Stars. फॉर्मिंग स्टार्स। ओके, इसको ऐसे एक्चुअली टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता ना जूम में तो इसलिए बड़ा मुश्किल है सब करना। तो सपोज आपको हर जगह ऑस्टियोसाइट्स बनाना है, तो अगर आपने तारे मैंने प्रोटोप्लाज्म नहीं बनाया कंटिन्यूअस, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी ये कौन सा लग रहा है आपको? सो दीज आर ऑल Osteoblast. ऑस्टियोब्लास्ट का लेयर। तो हाउ टू मेक इट ऑस्टियोसाइट्स? अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म दिखाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म। तो यू हैव टू मेक इट लाइक दैट। तो जहां भी ऑस्टियोसाइट्स है, आपको इस तरह से तारे बनाने पड़ेंगे। सो एक्चुअली ऐसा कोई बैकग्राउंड में जो मैंने लाइन बनाया है, वो लाइन होता नहीं है, वो हम लोग सिर्फ गाइडलाइन बनाते हैं, समझे कि नहीं? तो वो जो गाइडलाइन क्यों बनाया, ताकि हमारा सर्कल सर्कल जैसा दिखे। एक्चुअली ऐसा कोई लाइन नहीं होता। वो किस चीज का लाइन होता है? ऑस्टियोसाइट्स का। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सर्कल को डिलीट कर सकते हैं, तो बड़ा वाला सर्कल को डिलीट। समझ में आया? तो ये कुछ ऐसा दिखेगा।
कोई शक? So this is No, called sir. a No, sir. this is called a layer of osteocytes या lamella. Okay, this is called a layers of osteocytes या lamella. ठीक है जी, तो आपको इस तरह से वो ड्राइंग बनाना है. चलिए, so we'll go ahead. What are the function of different types of cells? अब हम लोग वो लिखना शुरू कर देंगे. सबसे पहला हमारा जो है वो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स है. ओके, सो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स आर ओके. So these are unspecialized bone stem cells derived from mesenchyme या mesoderm. Actually हमारा bone जो है mesodermal होता है. Okay, from which almost all connective tissues are formed. They are the only bone cells to undergo cell division. क्यों? क्योंकि mature bone cells divide नहीं करते हैं. The resulting cells develop into osteoblasts. So osteoprogenitor cells are found along the inner portion of the periosteum, in the endosteum, and in the canals within bone that contain blood vessels. तो इन सब जगह पर आपका मिलता है क्या? ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स. ठीक है. सेकेंड जो सेल है वो है ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है. नाउ व्हाट आर ऑस्टियोब्लास्ट्स? So these are bone building cells. They synthesize and secrete collagen fibers and other organic components needed to build the extracellular matrix, and they initiate calcification. ठीक है. And they initiate calcification. As osteoblasts surround themselves with extracellular matrix, they become trapped in their secretion and become osteocytes. Note, the ending blast in the name of any जगह blast है मतलब वो making है. Okay, means that the cell secretes matrix. ठीक है, तो वो matrix secrete करता है. चलिए, उसके बाद थर्ड सेल जो हमारा है वो है ऑस्टियोसाइट्स, एंड फिर हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोक्लास्ट्स. Now osteocytes are the third cells. Okay, so these are mature bone cells and are the main cells in bone tissue and maintain its daily metabolism, such as the exchange of nutrients, waste, etc. Like osteoblast, osteocytes do not undergo cell division. ठीक है, तो इसलिए ये उसका साइट का मीनिंग है. तो ये मैच्योर सेल होता है. साइट जहां लग गया वो मैच्योर सेल है. तो ये लोग आपका और डिवीजन फिविजन नहीं करेंगे. ब्लास्टस का मतलब क्या है? वो मैट्रिक्स बनाता है. मतलब इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द बोन, है कि नहीं? बोन मैट्रिक्स. उसके बाद जो चौथा टाइप ऑफ सेल है वो कहलाता है क्या? ऑस्टियोक्लास्ट. तो दे क्लास्ट का मतलब है जो रिजर्व करता है, जो बोन को तोड़ता है. तोड़ने का मतलब क्या है? उसमें से कैल्शियम रिमूव करना. अभी सपोज अगर आप बिल्कुल कैल्शियम नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आपका सारा का सारा कैल्शियम रिमूव हो जाएगा एंड आपका बोन बिस्कुट जैसा पोपला हो जाएगा एंड इट विल इजीली ब्रेक. समझ रहे हो? सो इसीलिए एनी चाइल्ड हु इज लाइटर देन हिज ऑफिशियल बॉडी वेट, उसका ऑस्टियोपोरोटिक प्रॉब्लम्स रहता है. क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? तो देयर इज
एक्सेस कैल्शियम लॉस एंड कैल्शियम रिटर्न नहीं हो रहा है. सो देयर इज नो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. आइदर आप कैल्शियम खा नहीं रहे हैं या ऑस्टियोब्लास्ट नहीं है. तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है और क्या. दैट हैज टू बी एसोसिएटेड. अंडरस्टूड. Yes. चलिए, Yes. तो इसीलिए जो फोर्थ टाइप ऑफ सेल है वो है ऑस्टियोक्लास्ट्स. एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल भी है हमारा. Okay, so these are huge cells derived from the fusion of as many as 50 monocytes, a type of WBC, and concentrated in the endosteum. On the side of the cell that faces the bone surface, the osteoclast plasma membrane is deeply folded into ruffled border. Here, the cell releases lysosomal enzymes and acids that digest the protein and mineral of the ECF. समझ रहे हो? तो तोड़फोड़ करने के लिए ये आपका क्या करता है, जो lysosomal enzyme रिलीज करता है. This breakdown of bone matrix termed as bone resorption. Okay, bone resorption, okay, is part of the normal development, maintenance, repair of the bone. तो ये उसका कैटलिस्ट है. फाइन. सो इसीलिए मेनली ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है, वो बोन को रिजर्व करना. ओके, सो इसलिए क्योंकि whenever body requires calcium, the body cannot be asked to wait. तो हम दे देते हैं, बट बाद में उसको लौटा दो. ओके, so just like that. ओके, नाउ तो इस पेज में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम हाईलाइट करेंगे. तो कौन कौन सा बोलिए. तो एक तो सेल्स का नाम, ओके, उसके बाद मेसेनकाइम, ठीक है, उसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, ये आप देखोगे ये ऑस्टियोप्रोजेनिटर या किसी और लिटरेचर में नहीं होता है. आप देखो जितना भी कालू वालू लिटरेचर में, वो ऑस्टियोब्लास्ट को ऑस्टियोप्रोजेनिटर मान के चलते हैं. बट हमने यहाँ क्या देखा, एक्चुअली ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोप्रोजेनिटर अलग अलग सेल्स हैं. ठीक है. So Yes. they are the only bone cells that undergo cell division. ठीक है. उसके बाद ये तो नॉर्मल चीजें हैं. इधर है रिजॉर्प्शन. ओके, 50 monocytes. Okay, concentrated in the endosteum, right, and lysosomal enzymes. ठीक है. तो मैं आपको दोबारा वो फोटोग्राफ दिखाने का कोशिश करता हूं, तो आप समझेंगे कि वो किस कब बोल रहा है. थोड़ा मैं उसको मैग्नीफाई कर दूं. आप देखिए, ये देखिए, तो ये देख रहे हो, तो ये आपका ऑस्टियोक्लास्ट सेल है. एंड ये जो मैग्नीफाइड बॉर्डर है, देख रहे हो, ये पूरा मैग्नीफाइड बॉर्डर है. एंड मैंने उसका सरफेस एरिया बढ़ाया गया है. और तो इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ाया गया है. क्यों बढ़ाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स सीक्रेट किए जा सकते हो, है कि नहीं मदर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हमारा वो ड्राइंग है. Yes, sir. चलिए, so this is your osteoclast.
देख रहे हो? चलिए, सो नाउ विल गो अहेड. तो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. नाउ अब हम लोग अगर उसका आगे कंसेप्ट डिस्कस करें, तो ये जो आपका सेल्स है ना, ये लोग अब क्या बनाएंगे? तो दे विल मेक द बोन. ठीक है? चलिए, तो उसके बाद जो Yes. बोन है वो कंप्लीटली सॉलिड नहीं होता. ओके, तो बोन एक्चुअली जैसा अपीयर करता है बाहर से, वो वैसा सॉलिड नहीं होता, वो उसमें गैप्स होते हैं. ठीक है? सो बोन is not completely solid but has many small spaces between its matrix. Some spaces serve as channels for blood vessels. Okay, other spaces act as storage areas for red bone marrow. Okay, depending on the size and distribution of spaces, the regions of bone may be categorized as spongy. है कि नहीं? अगर ज्यादा जो इधर स्पेसेस हैं उसको स्पॉन्जी बोलेंगे, एंड अगर कम हुआ तो क्या होगा? उसको हम टेंस बोन बोलेंगे. Dense. Dense. समझ में आया? सो ओवरऑल about 80% of the skeleton is compact bone and 20% is spongy. ठीक है? तो इसलिए डिपेंडिंग ऑन द साइज द रीजन्स ऑफ द बोन में बी कैटेगराइज्ड एज कॉम्पैक्ट. तो कॉम्पैक्ट को हम लोग डेंस भी कहते हैं और स्पॉन्जी. ठीक है? तो इसीलिए जो अगर आपका ज्यादा एयर स्पेसेस हुए तो उसको स्पॉन्जी बोलेंगे, एंड अगर आपका कम हुआ तो उसको डेंस बोलेंगे. तो मोस्टली इन आवर स्केलेटन वी हैव क्या? डेंस बोन या कॉम्पैक्ट बोन. चलिए, सो उसी को हम लोग आगे लेके जाएंगे. तो अब हम लोग चलेंगे कॉम्पैक्ट बोन के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ उसमें फ्यू स्पेसेस होंगे. सो अब हम लोग आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए dense mammalian bone. ओके, या आप कह सकते हो कॉम्पैक्ट बोन. ठीक है? डेंस मैमेलियन बोन या कॉम्पैक्ट बोन. तो अब इधर हम लोग आ जाएंगे. सो कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज कंटेन फ्यू स्पेसेस. एज हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था, उसमें कम स्पेसेस होगा, एंड इज द क्या? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बोन टिश्यू. तो इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? कॉम्पैक्ट. इट इज फाउंड बीनीथ. ओके, इट इज फाउंड बीनीथ द पेरियोस्टियम of all bones and makes the bulk of the diaphysis of long bones. Okay, compact bone tissue provides protection and support and resists the stress produced by weight and movement. So suppose मैं एक drawing बनाऊं. Okay, so now let us make a drawing. So सपोज हम लोग इस तरह से एक बोन बना रहे हैं. फाइन, सपोज ये हमारा बोन है. नाउ ये जो पार्ट है इसको मैं कट करके दिखा रहा हूं. सो ये जो पार्ट हमने काट कर दिखाया हुआ है, सो दिस इज द डेंस बोन, एंड ये आपका काफी स्पॉन्जी होगा.
एंड यू नो ये नेचर का ग्रेटनेस है। अगर एंड्स ऑफ बोन स्पॉन्जी नहीं होंगे तो जॉइंट जल्दी घिसेगा ना देर से घिसेगा? बोलिए। व्हाट डू यू फील? जल्दी घिस जाएंगे। अगर स्पॉन्जी नहीं हुए तो जल्दी जी घिस नहीं जाएगा। होंगे, नहीं, अगर जल्दी जल्दी घुस जाएगा सर। घिस जाएगा। समझ में आया? So if you don't have spongy bone at the ends, the joint will destroy fast. क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा गिरेगा ना उन पे। तो ये जो Yes, पार्ट sir. ऑफ द बैंड है इसको हम लोग एपीफाइसिस कहते हैं या एंड्स कहते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एपीफाइसिस या एंड्स, एंड this part is called diaphysis Diaphysis. या shaft। ठीक है, diaphysis या shaft। अब ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब बोन का डिटेलिंग आएगा। इसमें एक यूनिक जगह होगा जहां ये दोनों का फ्यूजन होगा। Okay, so there will be a unique place where there will be fusion of the spongy and dense bone, and उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? So that part is called metaphysis। Okay, metaphysis एटा तो हमें पढ़ी हुआ नहीं है ना। तुम लोग जितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो मेरा मन नहीं कर रहा है ऐसा पढ़ाने का, तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू रीड इट। हाँ, अगर कालू वालों में दिया होगा तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आप लोग का जितना इंटरेस्ट है मेरे को नहीं लग रहा ये सब मैं आपको अब पढ़ाऊंगा। चलिए, तो ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए मेटाफाइसिस जो है वो जॉइंट है। सो दिस इज एक्चुअली द जॉइंट बिटवीन देम। ठीक है, तो जॉइंट बिटवीन देम, तो इसको हम लोग मेटाफाइसिस कहते हैं। क्लियर? तो इसीलिए जो डायाफाइसिस है, दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेड अप ऑफ डेंस बोन। ठीक है, एंड एपिफाइसिस जो है, दिस इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी। Spongy bone. ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। फाइन, सो नाउ विल गो अहेड। तो इसीलिए ये आपका लोकेशन हो गया कि कौन सा बोन किधर है। नाउ अब इसका जो डिटेल्स हम लोग देखेंगे। सो इन केस ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन्स, आपका हर चीज जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होगा। ओके, देयर विल बी अ डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ दिस केसेस, एंड हर जो सेल है वो लेयर्स में होगा। अंडरस्टूड? सो एवरीथिंग विल बी इन लेयर्स। यस, अलग अलग तरीके के लेयर्स हो सकते हैं। तो नाउ अगर हम लोग एक क्रॉस सेक्शन काटें, या हम लोग जैसे कल काटे थे उसको पाई सेक्शन बोला जाता है। ओके, सो व्हेन वी मेक अ पाई सेक्शन, ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे पाई सेक्शन, टाइम कितना हुआ ना कटना, ये कट नहीं रहा आजकल। नहीं कटेगा सर। हाँ, गुड, अच्छी बात है। क्रिसमस गिफ्ट। हाँ, सो in a pie section, okay, from outside inwards, हम लोग क्या पाएंगे? पॉइंट नंबर 1। अगर हम लोग बाहर से आएंगे तो पॉइंट नंबर 1 हमको क्या मिलेगा? पेरियोस्टियम। Periosteum. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है पेरियोस्टियम। So it is the outermost layer found
around a bone. ठीक है, it is made up of, okay, made up of an outer layer of WFCT and inner layers of osteoblast cells. These cells, okay, these cells add, okay, these cells add new bone centripetally. Okay, now as we had discussed yesterday, जो बोन ग्रोथ है, बोन ग्रोथ दो तरह का होगा. एक उसको हम लोग कहते हैं एपोप्लाज्मेटिक ग्रोथ एंड एक हम लोग कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिए. तो एपोप्लाज्मेटिक ग्रोथ एंड दूसरा है आपका लैमेलर ग्रोथ. तो दे आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो उसको मैं नोट बना के लिख दे रहा हूं, बिकॉज इसका इधर जो है नोट. ओके, तो ग्रोथ ऑफ बोन is by two unique means. A apoplasmatic, that is growth is facilitated by adding, yeah, by increasing the क्या इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. समझ रहे हो? तो अगर हम लोग इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बड़ा कर दें तब भी तो कोई चीज बढ़ जाएगा ना. Yes, sir. ओके, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. सो दिस इज फैसिलिटेटेड बाय कौन सा सेल्स? ऑस्टियोब्लास्ट्स. ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? नंबर बी, लैमेलर ग्रोथ. तो इफ देयर इज एन एडिशन ऑफ बोन सेल्स, इट इज एडेड as a whole circular layer and hence it is referred to as क्या? Lamellar growth. Fine. So it is referred to as lamellar growth. ठीक है जी. तो it is facilitated by which cell? Osteoprogenitor cells. तो ये आपके बुक में नहीं होगा. दिस इज osteoprogenitor cells. Understood? तो दिस थिंग इज नॉट गिवन इन योर बुक. तो हमारे बुक में क्या लिखा है कि दोनों ऑस्टियोब्लास्ट करता है. ओके, चलिए. सो ये हमारा हो गया अबाउट द रोल ऑफ पेरियोस्टियम, है कि नहीं? तो अभी हम लोग पेरियोस्टियम का रोल डिस्कस कर रहे थे एंड हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में भी पढ़ा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने बॉक्स में लिख दिया. पहले ये सब ओल्ड एनसीईआरटी में था, अब ये सब उड़ा दिया है. ग्रोथ, वो टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक्सेट्रा अब कुछ भी नहीं है. चलिए, तो हो गया. तो ये आपका हो गया पेरियोस्टियम लेयर. ठीक है जी. नाउ
the WFCT layer, है कि नहीं? The WFCT layer of the periosteum क्या होगा? तो WFCT layer of the periosteum क्या is या provides strength to the bone owing to the presence of bundles of collagen fibers. ठीक है, तो कोलाजन फाइबर बंडल है, इसलिए आपका क्या होता है, इसलिए आपका पेरियोस्टियम स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो इसका ये जो चीज है ये सेंट्रीपिटली आपको याद रखना है, मतलब वो अंदर के तरफ ऐड करेगा। ओके, तो सपोज हम लोग एक पाई सेक्शन बनाएंगे तो ये अंदर के तरफ वो ऐड करेगा। चलिए, उसके बाद सेकेंड जो लेयर है उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। तो उसको कहेंगे मैट्रिक्स। तो इधर अभी सेल डिस्कस कर रहे हैं ना, मैट्रिक्स है, उसके सेकंड है ऑस्टियोसाइट लेयर्स। ठीक है, ऑस्टियोसाइट लेयर्स। सो द osteocytes are arranged in 4 different types of lamella. Okay, the osteocytes are arranged in 4 different types of lamella between the periosteum and एंडोस्टियम। ठीक है, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में ये आपका क्या 4 अलग अलग लेयर्स में मिलता है। ठीक है, नाउ तो इसलिए सबसे अब बाहर कौन सा लेयर होगा उसको हम लोग सर्कमफेरेंशियल लैमेला बोलते हैं। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड द सर्कमफेरेंशियल लैमेला। सो इसको हम लोग कलर चेंज करके लिखेंगे ए। सो सबसे उसके बाद होगा आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। So arranged from the entire outer and inner circumference, the shaft of long bone are called lamella. Okay, of long bone are lamella called circumferential lamella. Full stop. Okay, they develop during initial bone formation. The circumferential lamella directly deep to the periosteum are called external circumferential lamella. ठीक है, एक्सटेंड सर्कम को उधर ले जाते हैं। ओके, लैमेला दे आर कनेक्टेड टू द पेरियोस्टियम बाय परफोरेटिंग फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शार्पेज फाइबर्स बोलते हैं, नहीं तो अलग हो जाएगा ना, उसको जोड़ के रखना पड़ता है। सो द सर्कमफेरेंशियल लैमेला दैट लाइन इन द मेडुलरी कैविटी, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, ये इनर वाला है। ठीक है, तो ये आपका आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला हो गया। ओके, दे डेवलप हो गया एंड उसको दे आर कनेक्टेड टू द पेरियोस्टियम बाय परफोरेटिंग WFCT fibers known as Sharpes fibers. ओके, उसके बाद बी, तो बी में आ जाएगा आपका हैवर्शियन लैमेला। ठीक है, इसको हम लोग हैवर्शियन लैमेला बोलेंगे।
ना एक्चुअली क्या होता है, ये जो है उसको हम लोग ऑस्टियन बोलते हैं बेसिकली. ओके. Yes, So sir. compact bone tissue is composed of repeating structural units called osteon. ये आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है. और हैवर्शियन सिस्टम, हैवर्शियन systems each, okay, Haversian systems. तो हटा दो. चलिए. So each osteon consists of concentric lamellae around an osteonic canal. ठीक है. तो ये कौन सा कैनाल है? हैवर्शियन कैनाल और सेंट्रल कैनाल. हैवर्शियन और सेंट्रल, और उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल भी बोलते हैं. ठीक है. लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल. Resembling the growth rings of a tree, the concentric lamellae are circular plates of mineralized extracellular matrix of increasing diameter surrounding a small network of blood vessels and nerves located in the canal. तो उस कैनाल के अंदर आपका क्या होगा? आपका ब्लड वेसल्स एटसेट्रा सारे चीज होंगे. ठीक है. नाउ ये जो यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग क्या, उसको हम लोग पैरेलल सिलेंडर्स बोलेंगे. एंड जो आपका लैक्यूना के अंदर होगा, एंड उसमें पतले पतले नाली जैसे स्ट्रक्चर होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? कैनालिक्यूली. वो जो हमने तारे बनाए ना, वो जो पतले पतले कैनाल्स हैं, उसको क्या बोला जाता है? कैनालिक्यूली. So these tube-like units of bone generally form a series of parallel cylinders that in long bones tend to run parallel to the long axis of the bone. Now, between the concentric lamella are small spaces called lacuna. Okay, or lacuna, which contain osteocytes. ठीक है. आ गया lacuna आपका. Yes, sir. Now, radiating in all directions from lacuna are tiny canaliculi. तो ये कैनालिक्यूली में से क्या निकलता है आपका? जो continuous protoplasm, which are filled with extracellular fluid. Inside the canaliculi are slender finger-like processes of osteocytes. समझ में आया? तो उसमें ऑस्टियोसाइट का प्रोसेसेस होगा, एंड क्या होगा? एंड आपका मैट्रिक्स होगा. ठीक है जी. नाउ जो नेबरिंग सेल्स है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो नेबरिंग ऑस्टियोसाइट्स कम्युनिकेट बाय गैप जंक्शंस. तो उसमें जो आसपास के जो हैं उनके बीच में क्या होगा? गैप जंक्शंस होगा. Full stop. The canaliculi connect lacuna with one another and with the central canals, forming an intricate miniature system of interconnected canals throughout the bone. This system provides many routes for nutrients and oxygen to reach the osteocytes and for removal of waste and CO2. ठीक है. तो ये जो है आपका चैनल है आने का, आदान प्रदान का. सो इसीलिए दिस यूनिट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियन. नाउ ये जो ऑस्टियन है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका जो मैमलियन बोन्स का. ओके. So osteon in compact bone tissue are aligned in the same direction and are parallel to the length of the diaphysis. ठीक है.
ये सब आप लिख ले रहे हो कि नहीं? नहीं तो फिर आपको लिखोगे कैसे? आप लोग तो देखते नहीं हो कुछ। नाउ अब क्या होगा, तो ये जो आपका इन जो ऑस्टियन के बारे में, so as a result the shaft of long bone resists bending or fracturing even when considerable force is applied. समझ रहे हो, माने इसलिए उसका स्ट्रेंथ होता है. Compact bone tissue tends to be thickest in those parts of bone where stresses are applied in relatively few directions. The lines of stress in bone are not static. They change as person learns to walk and in response to repeated physical activity. Okay, तो आप किस तरह का काम करते हैं, accordingly आपका line of stress अलग होगा. The lines of stress in bone also can change because of fractures or deformities. ठीक है? Thus, the organization of osteons is not static but changes over time in response to demands placed upon the skeleton. तो आप किस तरह का लोड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उसके ऊपर ये डिसाइड करेगा. Now, Haversian canals. Okay, Haversian canals are pre-laid. इसका मतलब क्या है, पहले से डाले होते हैं. Are pre-laid and have an arterial, venal and lymphatic vessel along with some nerves. ओके हाँ, सब न्यूरॉन्स तो नहीं, उसको नर्व्स ही बोला जाएगा क्योंकि वो पतले पतले नर्व्स होंगे. नाउ दे आर द मेन सप्लाई रूट टू द अदरवाइज कॉम्पैक्ट बोन. सुनिए, आप जानते थे कि छत डलेगा जब, तो उसके बाद में आप उसमें क्या नहीं कर सकते, वायर के लिए पाइप नहीं डाल सकते. ठीक है, इसलिए आपको, अगर आपको इंटरनल पाइप डालना था तो कब डालना था, ढलने से पहले. समझ में आया? छत डालने से तो पहले. यू शुड हैव डन इट मच बिफोर. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसलिए हम लोगों ने भी हाइवर्शियन कैनाल मच बिफोर डाल दिया था. Understood? Now, these Haversian canals are interconnected by horizontal canals known as क्या बाबा, Volkmann's canals. तो समझ गया? So the Haversian canals are connected by horizontal canals known as Volkmann's canal. तो इसलिए अब because these help to क्या interconnect with each other, है कि नहीं? Otherwise अगर एक न्यूरॉन एक Haversian canal से जा रहा है तो how it will go to the other? तो उसके लिए कोई ना कोई तो आपको हॉरिजॉन्टल कैनाल भी डालना पड़ेगा. सो दोज हॉरिजॉन्टल कैनाल्स आर कॉल्ड क्या, बोलो, वोल्कमैन्स कैनाल्स. इसको हम लोग इंटरऑस्टियोनिक कैनाल्स भी बोल सकते हैं. ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स फ्रॉम द पेरियोस्टियम पेनिट्रेट कॉम्पैक्ट बोन थ्रू ट्रांसवर्स इंटरऑस्टियोनिक कैनाल्स. The vessels and nerves of the intraosteonic canals connect with those of the medullary cavity, periosteum and central canals. तो central canals का मतलब क्या है, Haversian canals. ओके, तो वो आपका medullary cavity कौन सा होता है, जहां बोन मैरो होता है. तो
आपका ब्लड वेसल पेरियोस्टियम में होता है, आपका ब्लड वेसल मेडुलरी कैविटी में होता है, आपका ब्लड वेसल हैवर्सन कैनाल्स में होता है। इनको आपस में जोड़ता कौन है? इंटरऑस्टियोनिक कैनाल्स, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरऑस्टियोनिक कैनाल्स या वोल्कमैन्स कैनाल्स। आ गया मजा? तो ये हमारा Yes, sir. थर्ड लेयर हो गया। क्या सेकंड लेयर? सेकंड लेयर आपका ये हुआ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जो थर्ड लेयर, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल लेयर। Interstitial. क्यों? बिटवीन होगा ये। ओके, सो दीज लेयर्स विल बी बिटवीन, तो उसको हम Yes, लोग sir. इंटरस्टिशियल लैमेला बोलेंगे। Interstitial मतलब lamella. जहां भी गैप्स हो जाएगा। सो थर्ड जो है, सो दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल lamella. So the areas between neighboring osteons contain lamella called interstitial lamella. Okay, which also have lacuna with osteocytes and canaliculi. Now, these are fragments of older osteons that have been partially destroyed during bone rebuilding or growth. पहले ये पूरा थे सर्कल, अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। क्यों? बिकॉज बोन अदर दिशा में ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए ये अब ग्रो नहीं किया। सो इसको हम लोग इंटरस्टिशियल लैमेला बोलेंगे। एंड लास्ट में क्या हो गया? फोर्थ, that is called inner circumferential lamella। ठीक है, जो फोर्थ लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। तो ये ऑस्टियोसाइट्स लेयर है। ओके, याद रखना। सो दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। बॉय, so the inner circumferential lamella are क्या? outer to endosteum। ओके, ये आउटर टू या सेंट्रीपिटल टू बोल सकते हैं हम लोग। आउटर टू या सेंट्रीफ्यूगल टू एंडोस्टियम। ठीक है जी, फुल स्टॉप। दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ osteocytes and extra cellular matrix। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका ऑस्टियोसाइट लेयर हो गया ना। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एंडोस्टियम में। तो जो लास्ट लेयर है हमारा, तो वो आपका क्या है? एंडोस्टियम। उसको देख लेते हैं एक बार। Osteocyte layer, one is periosteum, two is osteocyte layer, A, B, A है सॉरी, ये C D होना चाहिए ना, तुम लोग क्या बोल रहे हो? ये C, ये D होना चाहिए, डुबाओगे तुम लोग। उसके बाद ये जो होगा ये 3 हो। So this 3, this is called endosteum। Okay, this is called endosteum। Now, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? It lines the क्या? Bone marrow cavity। Okay, it lines the bone marrow cavity। It also has क्या? Layers of osteoblasts। Okay, it also has
layers of osteoblasts and क्या WFCT and WFCT. It also has layers of osteoblasts and WFCT. Osteoblasts adds new bone centrifugally. Okay, तो osteoblast adds new bone centrifugally. मतलब एंडोस्टियम बाहर पेरियोस्टियम के तरफ बोन बनाएगा, पेरियोस्टियम एंडोस्टियम के तरफ बोन बनाएगा. ओके, सो व्हाट व्हेन वी से so we can say that the growth of bone in thickness is bidirectional. ठीक है, is bidirectional. ठीक है, तो ये आपका एंडोस्टियम के बारे में हो गया. So I am deliberately ending the meeting. You rejoin immediately.